Okay, dear students, good evening. Actually, on Friday I could not, you can say, conduct your class. So that topic is still incomplete. Today I have to finish the topic, that is possibly World Economic Depression. This topic is still unfinished, but no problem. Today the point would be clear. My students, once again I am repeating the same thing. There is no use of going through a single one topic. The topics should be viewed in organic whole. So with the objective, actually only then you can be a thinking creature. You have to underline the changes and observe history and move throughout history horizontally. So the first part is what? That is the first part, that is the rise of modern West, ancient world, medieval world, and the rise of modern West. The second part is starting from enlightenment up to liberalism and nationalism in Europe. The third part is starting from industrial revolution and ending up to imperialism and the First World War. And the fourth part we are going across, that is, the first one is Paris Peace Conference, then the World Economic Depression, the third one would be fascism and Nazism, and then the, rise of the Second World War. So this is the World Economic Depression. Previously I have done this topic, but I have given you some homework. So let us observe. Russian Revolution gave a new decision, world politics, and actually is this question? Yes. Or the question on World Economic Depression? Which question I have given to them? This one, my friends, make me clear. I have given this question as a homework, and have you done this question? Or need you any help from my side? Yes, ये क्वेश्चन they tried but they need help. Yeah. क्वेश्चन यही है और इन्होंने ट्राई भी किया बट थोड़ा हेल्प चाहिए. Okay. They need the help. My students, in this question you may find difficulty if you are not having a larger idea, and I can very well understand your situation. You are just taking the bites. After taking the bites, you are supposed to chew it. After chewing, then you have to digest it, and you have to do the intellectual fermentation. Only then you will find the actual effect of the answer. मतलब होता क्या है कि देखिए, आपकी गलती नहीं है, आप थोड़ा भी लेट डाउन फील मत करना. हम आपके प्रॉब्लम को हम क्रिएट कर रहे हैं. क्यों? तो हम अभी आप कुतरते हो, मतलब बाइट ही लेते हो, तो हम आपको होमवर्क दे देते हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर करके आओ. और माय स्टूडेंट, सही मायने में whenever you will finish the world history and then you will start to deal with the questions, surprisingly you will recall me, one by one you will solve all the questions. क्योंकि तब तक क्या होगा? तब तक बाइट्स लेने के साथ तुम उसको च्यू कर लोगे. च्यू करने के बाद तुम उसका इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन कर लोगे, बौद्धिक जुगाली. So after that will produce the effect and you can answer any question. In this question, Russian Revolution gave a new direction to world politics and international relations. So actually this question, you can say, for answering this question you are having the workable knowledge of Cold War as well. For example, in this question, how to start the question. So you can start this question कि after Russian Revolution, Europe was so intensely Europe was ideologically divided so intensely it had never been since the era of
since the era of the Reformation, यहां पर देखो, आई हैव जस्ट गिवन इट टू द इंफॉर्मेशन कि एरा ऑफ रिफॉर्मेशन का मतलब है कि हियर आई हैव मीन्ड प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, मतलब एरा ऑफ रिफॉर्मेशन मीन्स कि द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, यू नो. तो आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन यूरोप वाज आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड सो इंटेंसली, या इवन सो इंटेंसली आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड as it had never been since the era of reformation, मतलब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट. तो एक इंट्रोडक्शन तो हो गया. तो जो इंट्रोडक्शन होती है वो समझ से लिखी जाती है. देखिए, क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ कंटेंट याद रहना आवश्यक है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर लिखा जाता है इट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ओवर आवर अंडरस्टैंडिंग. तो जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी, जितनी हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, उतने अच्छे आंसर लिख सकेंगे. अब ये हो गया. अब the formation of the first socialist government in Russia gave a major threat to capitalist world. It is particularly for the fact that Russian government, or you can say communist government of USSR, adopted world revolution as its major objective. अब देखो, अब डायरेक्शन तुम्हारा क्लियर है. विद द चेंज ऑफ पैराग्राफ करो, और एक पैराग्राफ में थोड़ा सा उसमें 3-4 पॉइंट्स डिवीजन ऑफ यूरोप दिखा दो आप. ये एक्चुअली the Europe was ideologically divided and there was the formation of two military blocs. The first NATO under the leadership of USA, and then Warsaw Pact, which was organized by Soviet Russia. And there was the division between the western part of Europe and eastern part of Europe ideologically. तो हो गया. Then with the change of paragraph, it was not simply this, you can say it was the beginning of Cold War in Europe. लिख देना, it was the beginning of Cold War of Europe. With the change of paragraph, not simply that, and this Cold War didn't remain confined simply to Europe, but it spread to the vast region of Asia, Africa, and Latin America as well. So even the world was ideologically divided between the socialist and the capitalist countries. And both the, you can say, superpowers, USS and USSR, started to rally behind it, the large number of nations. So it led to the phenomena of Cold War in the global context.
तो इस तरह से कुछ करके कुछ रचना पड़ेगा। हालांकि मैंने कोल्ड वॉर अभी नहीं पढ़ाया है, तो इस क्वेश्चन को लिखने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हुई होगी, थोड़ा डिफिकल्टी हुआ होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन यही इसका डायरेक्शन होगा। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आगे मैं ना बढ़ूं, नहीं तो क्वेश्चन लिखने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग तो have you dealt with the causes of world economic depression? My students, I have just finished your class on Thursday and could not, you can say, conduct your class even on Friday. So there is a long gap. So please give me a hint through Mr. Ankur, at which point I have left you in the topic of world economic depression, so that I should resume the class again from the same point. Please, my students, be fast. Give me some hint. Causes of depression. कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम केनेसियन इकोनॉमिक्स। ओके, अच्छा, कॉजेज ऑफ डिप्रेशन आई हैव डील्ट विथ। थोड़ा सा देख लो तो, और भी देख लो तो क्लियर कट, थोड़ा मुझे इससे सुविधा हो जाएगी। कॉजेज ऑफ डिप्रेशन हैज बीन फिनिश्ड और नॉट? यस और नो? प्लीज गिव मी द हिंट। कॉजेज ऑफ, आफ्टर दैट आई विल मैनेज। कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, सॉरी, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, वाज इट फिनिश्ड और नॉट? Yes or no? बच्चे बोल रहे हैं causes of depression finished. Finished. Okay. The causes has been finished. No problem at all. Then, causes, we have finished this causes as you people have told me. हाँ. अब methods adopted to tackle the economic depression. अब that is going to create a problem. Here I have to inform you कि the methods, actually various methods were followed. First of all, here you are informed that कि in 1932 there was a conference at Lausanne or Lausanne. So this conference of European countries had to decide about the loan amount of Germany. It was bitterly realized कि as on Germany the heavy amount of indemnity was imposed, so German economy slowed down, and due to the slowing down of German economy, even European economy slowed down. So now it was bitterly realized, and it was realized that if the European economy had to be given a boost or jolt. So first of all, the loan amount on Germany should have been waived off. उनका यह मानना था कि अगर अब यूरोपीय अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ देना है, एक नई गति देनी है, तो जर्मनी पर जो लोन अमाउंट का बर्डन है उसको वेव ऑफ करना पड़ेगा, उसको मुक्त करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट इन द सो कॉल्ड लोशान और लाउशेन कॉन्फ्रेंस, this 90%, nearly 90% of the loan amount on Germany, that was waived off. Then the second one conference had to be organized, and the second one conference convened at London in 1933 in order to view over the solution to this problem of world economic depression. Because my students, actually what happens, suppose you can say you are just moving into the river, and in the river there are the 5 to 6 persons. One started to be drowned. So this person is taking the shoulder and putting his foot on the shoulder of the other. So even the other is on the point of getting drowned. And the same happens with other. Matlab, the 5 to 6 persons out of panic started to push each of them within the water, or you can say under the water, and finally all are going to be drowned. The same case happened in case of economic depression as well. It led towards a trade war and a currency war.
अब व्हाट इज द ट्रेड वॉर एंड व्हाट इज करेंसी वॉर, आई हैव टू रिपीट इट. इन ट्रेड वॉर मीन्स कि सपोज कि एक्चुअली एवरी कंट्री विल ट्राई टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट, increase the export and make a major reduction in import. You can very well understand the situation ki suppose we are you can say doing the trade and I have consciously curtailed the amount of import from you and try to push my own export to you. So in retaliation you will just try to make a curtailment the import from me. So finally both are going to be adversely affected. The same happens in case of the community of nations at that time. एक देश ने चाहा कि भाई मैं अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लूं और इंपोर्ट कम कर लूं, तो दूसरा ने भी रिटेलिएशन में, प्रतिशोध में, उसने भी अपने इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की. तो अंत में सभी एक दूसरे को एडवर्सली अफेक्ट कर दिया इसके कारण. तो इसको कहते हैं ट्रेड वॉर. और करेंसी वॉर क्या होती है? तो सपोज आई एम गोइंग टू डिवैल्यू माई करेंसी, सो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी रिजल्ट्स इनटू द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड curtailment in import. Now suppose you can say I am devaluing my currency or India is devaluing its currency, so it will give boost to export and it will discourage import. That is the natural consequence. My friends, please give me the hint. Do you understand this point? If some country is making a devaluation of the currency, in what way it is going to give a jolt to export and make a curtailment in import? Please inform me. अगर एक कंट्री अपने करेंसी को डिवैल्यू करता है तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? कैसे? समझ पा रहे हो ना? तो इसको कहते हैं ट्रेड वॉर एंड करेंसी वॉर. तो इट विल रिजल्ट इनटू ट्रेड वॉर एंड करेंसी वॉर. तो एक ब्रिटिश स्कॉलर था, उसका नाम था जॉनसन. वो स्कॉलर थी, इनफैक्ट सी इज ए लेडी, हर नेम वाज जॉनसन. सो जॉनसन हैज गिवन अ फ्रेज एंड द नेम ऑफ फ्रेज इज द बेगर दाई नेवर पॉलिसी. बेगर दाई नेवर पॉलिसी मीन्स कि टू मेक योर नेवर इंसॉल्वेंट. मतलब सबकी कोशिश यही थी कि मैं अपने पड़ोसी को गरीब बनाकर खुद को अमीर बना लूं. उसके लिए एक फ्रेज आता है बेगर दाई. दाई मतलब एक रोमन टर्म है. दाई दाई का मतलब होता है यू, योर. इंग्लिश में उसको योर बोलते हैं, वैसे कहते हैं दाई. मैंने शेक्सपियरियन इंग्लिश में दाई शब्द का प्रयोग होता है योर की जगह. बेगर दाई नेवर, दैट इज अ फ्रेज. बेगर दाई नेवर पॉलिसी. तो जॉनसन ने एक फ्रेज कॉइन किया कि बेगर दाई नेवर पॉलिसी. अब देखो, अब सम कंट्रीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन इंडिविजुअल बेसिस. So some countries try to solve the problem on individual basis, but my friends, problem is that you are just going to solve this problem on individual basis. So it was in this context, it tried to tighten its budget and to make a curtailment in expenditure. मतलब इसने उल्टा काम कर दिया. हालांकि लॉन्ग टर्म में तो फायदा उसी में था, क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो यही कहते थे कि देखिए आपका जो सिस्टम है, मतलब आपकी जो, माने उनका कहना था, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे उनका कहना ये था कि देखिए ये टाइमली, मतलब ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है ये टाइमली, फॉर टाइमली ये कह सकते हो कि टाइमली प्रॉब्लम है, चैलेंज है. एंड इफ यू विल जस्ट ग्रेजुअली लेट योर इकोनॉमी रन इट्स ओन कोर्स, सो ग्रेजुअली इट विल मेक एन एडजस्टमेंट विद द सिचुएशन. तो उनको नहीं लगता था कोई बहुत बड़ी पैनिकी की जरूरत है. तो वो सजेस्ट कर रहे थे कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करिए, आप अपने एक्सपेंडिचर को कम करिए, बजट को टाइटन करिए, फिजूल खर्ची को बंद करिए. मतलब जो आपने जो एक्स्ट्रा वैगेंस कर रखा है अपने बजट में उसको आप कर्टेनमेंट करिए. अब उससे और उल्टा इंपैक्ट पड़ गया. एक्सपेंडिचर कम हुआ तो डिमांड और भी कम हो गया, और डिमांड और भी कम हुआ तो और डिप्रेशनरी प्रेशर इकोनॉमी पर आ गया. अब यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि वो उसी तरह की बात है कि कोई व्यक्ति जो अनेमिया का से सफर कर रहा और उसको वो बेड रिडन है, उसको कहो कि भाई ऐसा है कि आप फ्रूट्स खाइए, दूध पीजिए, मैंने टेक द मिल्क, टेक द फ्रूट्स एंड डू द मॉर्निंग वॉक. भाई
if he will be in a position to walk, only then he can do the morning walk. तो ये सब करने से लॉन्ग टर्म में उसका हेल्थ सुधरेगा, लेकिन पहले इमीडिएट आपको कोई ऐसा उसको मेडिसिन देना पड़ेगा जिससे वो पहले बेड छोड़ के खड़ा तो हो. तो वो मेडिसिन लाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स. आई विल डिस्कस विथ यू कि दैट इज द पेन किलर टू इकोनॉमी. And John Maynard Keynes became so famous as an economist that even today he is having relevance directly or indirectly in the world economy. And every policy maker, for example, you can say that everybody knows that painkiller is not healthy and painkiller is going to affect the body in long term. But every doctor is compelled to recommend painkiller several times in his life to his patient because he already know the fact that there is no way out immediately. तो वही जो जॉन मेनार्ड केन्स का जो फार्मूला है वो ऐसा पेन किलर है कि वो पेन किलर का इंपॉर्टेंस है ही, कभी उसका रेलिवेंस पेन किलर का समाप्त नहीं हुआ. इट नेवर एंडेड, इट ऑलवेज इज हैविंग इट्स ओन रेलिवेंस, यू नो. तो चलिए हमने आपको अब यहां से आगे ले जाना है. तो सम कंट्रीज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो सॉल्व नहीं हुआ. अब देखिए, वन सोल्यूशन वाज ब्रॉट बाय नाजी जर्मनी एंड सरप्राइजिंगली यू कैन से हिटलर कुड ब्रिंग अ वेरी रियलिस्टिक सोल्यूशन. एवरी कंट्री वाज सरप्राइज्ड एट दैट टाइम कि हाउ कुड हिटलर ब्रिंग सच ए रियलिस्टिक सोल्यूशन, बिकॉज एक्चुअली हिटलर वाज नॉट एन इकोनॉमिस्ट. He was not even guided by Keynesian economics, you know. But, you know, actually Hitler was preparing Germany for the future war. So he created a war economy. And with this purpose, and he promised the youth to give the employment, you know. So Hitler actually started to recruit the youths in army quickly and immediately. So he could create a big army of nearly 6 lakh soldiers. He could create a big army of nearly 6 lakh soldiers, you know. 6 lakh soldiers. And then you can say कि anyway, and in this way he started to do the work. And the second thing, you know, he even established the armament industries, and he used to appoint a large number of people in armament industries. मतलब वो शस्त्रागार को स्थापित किया और बड़ी संख्या में लोगों को हथियार बनाने के लिए नियुक्त कर दिया. He created public works department, PWD, and started construction work, road construction, you can say bridge construction, because he was preparing its economy for the future war. But it was in this course, you can say, he just, you can say, he channelized his economy towards the war, means he created a war economy. अब मान लीजिए आप 6 लाख सोल्जर्स को रिक्रूट करोगे तो उनको बैठा के योगासन तो नहीं करवाओगे, उन पर तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उनका कुछ ना कुछ यूज करना चाहोगे तो क्या करोगे? अटैक करोगे, इन्वेडिंग पॉलिसी, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करोगे. वही हिटलर के साथ हुआ. लेकिन हां, हिटलर इमीडिएटली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन बिकॉज व्हेन ही created a large number of employments, so it created demand in economy, and due to the creation of demand, the deflationary pressure was removed. तो ये हिटलर की एक सफलता है. नहीं तो जर्मनी का तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो डिप्रेशन था उसमें ऐसा हाल था. मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू एन अनेक्डोट, हिंदी में ही बोल देता हूं ताकि सभी लोग समझ जाए. देखिए, एक्चुअली उसमें एक जर्मनी में एक अनेक्डोट है, एक कहावत है, कहानी है कि कोई एक ओल्ड वीमन माथे पर एक बास्केट ऑफ जर्मन मार्क, जर्मन करेंसी को मार्क बोलते थे. तो जर्मन मार्क को
एक टोकरे में बास्केट में लेकर, वह जो ओल्ड वेमन थी, एक बुढ़िया थी, वह मार्केट जा रही थी पाव खरीदने। पाव समझते होंगे, जो ब्रेड होता है। अब समझ लो कि क्या वहां महंगाई का सिचुएशन था जर्मनी में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण, और जर्मनी की इकोनॉमी तो डिस्ट्रॉय कर दिया था ये वर्सेस की ट्रीटी ने, कि बास्केट में आप जर्मन मार्क लेके जा रहे हो पाव खरीदने। किसमें? टोकरे में, बास्केट में। एक कोई पिक पॉकेटर था जो बड़ी देर से घात लगा के बुढ़िया को देख रहा था। वो अचानक से झटका मारा, बास्केट उसके हाथ से छीना, जर्मन मार्क को सड़क पर उड़ेल दिया और बास्केट लेकर भागे। अब ये था उस समय जर्मन मार्क का कॉस्ट, कि चोर ने भी जर्मन मार्क को लेना नहीं चाहा। सो कैन यू इमेजिन द सिचुएशन कि व्हाट हैपेंड टू जर्मन इकोनॉमी एट दैट टाइम। बट हिटलर कुड इंप्रूव द इकोनॉमी। कैन यू बिलीव कि हिटलर कुड इंप्रूव द इकोनॉमी and gradually he made the German economy recovered. तो ये हुआ। Yes, अब comes the turn of John Maynard Keynes. There comes the turn of John Maynard Keynes, you know. Actually, basically, he was an economist. You have already understood about him. He became famous at the time of Treaty of Versailles, because he was at the head of the British delegation in this Treaty of Versailles, but later he resigned from this post because he was pained and he was shocked at the provisions of the treaty, which was so torturous, which was so unequal, which was so cruel on Germany. तो वही जॉन मेनार्ड केन्स in 1936 he brought a solution. उसने solution क्या लाया? उसका सॉल्यूशन था, उसने एक बुक लिखी 1936 में, कि द थियरी ऑफ इंटरेस्ट, द नेम ऑफ द बुक वाज द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द थियरी ऑफ, द नेम हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, नो प्रॉब्लम। द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एंड ही ट्राई टू ब्रिंग द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मतलब ही, देखो, जस्ट 1 मिनट, बी मेंटली अलर्ट, मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा। जैसे देखो, जैसे मैंने आपको एक इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है, उसका नाम है, उसको बोलते हैं जेबी से। जेबी से कौन है? तो बेसिकली ही इज ए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब हु वाज द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स? यू नो, एडम स्मिथ। The theory of Adam Smith was developed further by whom? That was David Ricardo, then Haverler, and finally you can say J.B. Say. तो से का जो थियरी है उसको सेज लॉज कहते हैं, सेज लॉ। और सेज लॉ क्या बोलता है? इसका इक्विलिब्रियम का थियरी है। ये थोड़ा हार्डकोर इकोनॉमी है। इफ यू विल परमिट मी, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हिंदी में संतुलन। मतलब इकोनॉमी में कैसे संतुलन आता है। उसने कहा, जैसे उसका ये कहना है कि सपोज करिए कि, जैसे देखो, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, तो दो तरह की इकोनॉमी होती है। एक तरह की जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसको कहते हैं सप्लाई लेड इकोनॉमी। सप्लाई लेड इकोनॉमी का मतलब यह हुआ कि उसका यह कहना है कि यू हैव टू डू द प्रोडक्शन एंड डोंट बॉदर अबाउट डिमांड एट ऑल, बिकॉज यू आर डूइंग द प्रोडक्शन, you are employing the workers. So workers will be given the salary, the wages. So workers would be turned to be the potential market, and then the workers would do the demand creation. तो मतलब उसका कहना है कि the supply will create its own demand, production would create its own demand, so you have not to bother about the demand creation. तो उसका बेसिक थियरी है कि जैसे ये 1 लाख, सपोज करो 1 लाख रुपीज है, तो इसने कहा कि मार्केट में अगर 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ है तो प्रोडक्शन खपत होगा। उस खपत में 50,000, मान लीजिए उसका कहना है कि 50,000 चला गया वेजेज के रूप में। मार्केट में 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ, 50,000 जस्ट वेंट इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, और 50,000 वह कैपिटलिस्ट के मुनाफा के रूप में गया। मतलब
50,000 प्रॉफिट के रूप में कैपिटलिस्ट के पास चला गया और 50,000 वेजेज के रूप में वर्कर्स के पास चला गया। तो सेज थियरी कहता है कि ये 50,000 जो है, वो 50,000 जो वेजेज है वो डिमांड के रूप में लौटेगा मार्केट में, और जो कैपिटलिस्ट का 50,000 रुपीज जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में लौट जाएगा। तो फिर वो 1 लाख रुपीज मार्केट में लौटेगा। इस तरह से इक्विलिब्रियम खुद होता रहेगा कि मार्केट से पैसा डिस्पोज ऑफ होगा, फिर मार्केट में दोबारा आएगा, डिमांड क्रिएट होगा, प्रोडक्शन होगा, एंड इकोनॉमी हैड टू रन स्मूथली। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? जॉन मेनार्ड केन्स ने, मेंटली अलर्ट रहना, बाद में मैं पूछूंगा, जॉन मेनार्ड केन्स ने जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क टू दिस थियरी। जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा कि देखो आप गलत बोल रहे हो, यू आर रॉन्ग हियर। क्योंकि जब केन्स तो तब उठा जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया और मार्केट, जैसे इनका कहना है कि भाई मार्केट में प्रोडक्शन होगा तो डिमांड क्रिएट होगा ही, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज रियलाइज्ड। हालांकि देखो अप एंड डाउन तो होते थे पहले भी, लेकिन एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन यू कैन से कि there was a very unique type of situation. Market was full of products and there was no purchaser. So everybody was nervous कि what happens? आखिर ये हो क्या रहा है? ये कौन इसके लिए accountable? And you will be surprised to know that कि this world economic depression created even the more, you can say, tremendous psychological impact even than the First World War. Because at least before the first and about the First World War, at least you know कि there is some human agency which is working behind that. But about the world economic depression, no one knows who was accountable behind that. But it happened and it almost destroyed the whole world economy. In USA, the kids were playing with the apples and there was no purchaser of the apples, you know. जैसे अमेरिका में लोग बच्चे सेब से खेल रहे थे और उसका कोई खरीदार नहीं था। तो केन्स ने उसका थियरी दिया। केन्स ने कहा कि नहीं, आप गलत हो। 50,000 जो वेजेज के रूप में जाएगा, दैट विल नॉट रिटर्न इन टोटलिटी बिकॉज द वर्कर्स आर डेफिनेटली हैविंग अ टेंडेंसी टू सेव द मनी। तो अगर वो मनी को सेव करके रख देता है और बैंक में अगर डिपॉजिट कर देता है, सपोज करो 50,000 रुपीज उसने स्पेंड किया और इसमें ज्यादा नहीं 45,000 सेव हो गया। जैसे आप सपोज करिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज, तो आपने 90,000 रुपीज स्पेंड किया और 10,000 रुपीज जो बचा के रख लिया, तो मार्केट में तो 90,000 रुपीज ही आया। फिर आपको गया 1 लाख रुपीज, बट द मार्केट, द अमाउंट वाज रिटर्न टू मार्केट सिंपली 90,000। और अगर वही अमाउंट फिर दोबारा आता है तो फिर 10,000 कम होकर आएगा, फिर तीसरी बार आएगा तो फिर 10,000 कम होकर आएगा। तो टाइम विल कम कि मार्केट का जो डिमांड है वो सिकुड़ता जाएगा। जो टोटल जो वेजेज है वो फिर इन्वेस्टमेंट, जो टोटल वेजेज है वो डिमांड के रूप में नहीं आएगा, मार्केट विल श्रिंक एंड द मार्केट विल श्रिंक। तो उसका कहना है कि जब मार्केट श्रिंक करेगा तो डिमांड डिक्लाइन करेगा, और डिमांड डिक्लाइन करेगा तो फिर क्या होगा? मेंटली अलर्ट रहना। तो उसका कहना था कि जब डिमांड डिक्लाइन करेगा तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो डर जाएगा and he will not come with the money for investment. And here the John Maynard Keynes has given the shocking information. The capitalist class will have a bundle of currencies. He will even sleep on the bundle of currencies, but he will not prefer to spend the currencies and invest the currency in the market, because now he was worried about the future, what will happen because the demand is declining. So in that eventuality, the government has to come to the fore. And then he gave a major role to the government in economy. He denied the laissez-faire economy. No, this is not the right strategy. And he talked directly about the government. The government had to make a direct intervention into the economy, and the government had to work actively for demand management. Government had to work for demand management. In what way? So my student, the demand management in the sense, here I have to give you the information. Means कि the government had to do the demand management in that sense कि this is government.
government is having two weapons or two instruments. One is taxation, another is expenditure. Okay, be mentally alert. If the market the demand is declining, then the government had to make a curtailment in the tax so that the money should be left into the hand of the people to spend in the market. So the government had to make a curtailment in the expenditure, as if it will make a curtailment in the expenditure, so a larger amount would be left into the hand of the people. A larger amount had to be left into the hand of the people, which the people could spend. It's his view. तो लोगों को इतना अमाउंट लोगों के हाथ में होना चाहिए कि लोग मार्केट में स्पेंड कर सके तो टैक्स को कम कर ले. एंड द गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड मनी लार्जली इन रोड बिल्डिंग, कैनाल बिल्डिंग, ब्रिज बिल्डिंग, व्हाटएवर में भी. मतलब यही सो कि जॉन मेनार्ड केन्स ने अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को सजेस्ट किया कि अगर आपके पास काम नहीं है तो टेल द वर्कर्स टू डिग द अर्थ and to fill it up and give them the salaries. They will go to the market after taking the salaries and wages. They will spend the money and demand would be created. उसका यहां तक कहना था कि अगर आपके पास काम नहीं है तो वर्कर्स को कहिए कि एक ही गड्ढे को कोड़े और उसको भरे और वो मार्केट में जाएगा, डिमांड क्रिएट होगा और फिर इकोनॉमी खुद चल निकलेगी. तो ये उसका फार्मूला है. उसने कहा कि अगर टैक्सेशन हम कम करते हैं और एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है गवर्नमेंट, अगर डिमांड डिक्लाइनिंग है तो उससे क्या होगा, डिमांड विल बी क्रिएटेड. सो मोर डिमांड मींस मोर प्राइस, एंड मोर प्राइस मींस मोर प्रोडक्शन, and more production means more employment, and more employment means once again more demand, and more demand means once again more you can say price, and more price more production, and more production means ki more employment. So this cycle had to move, the cycle had to move continuously till 100% employment would be achieved. The objective of 100% employment would be achieved. And once there would be the 100% employment, so in the meantime the demand would reach up to so high and demand would be so intense that it will create the inflationary pressure on the economy. So the government had to take the caution here, and the government had to make a curtailment in the expenditure fastly and to increase the tax. मतलब आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट को एक्सीलेटर पर पांव है और ब्रेक पर पांव है. जब देख रहा है कि डिमांड कम हो रहा है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए और लोगों को सैलरी मिलेगी, वेजेज मिलेगा तो वो जाके गुड्स को खरीदेगा, और टैक्स को कम कर दे ताकि मिडिल क्लास के पास हाथ में पैसा होगा तो बाजार में स्पेंड करेगा. लेकिन इससे क्या होगा कि डिमांड क्रिएट होगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर डिमांड क्रिएट और भी होगा, तो फिर तो साइकिल चलेगा. और जब 100% इंप्लॉयमेंट हो जाएगा तो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन आने लगेगा, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा, तो मार्केट हिलने लगेगा. तो उस क्या करे कि एक्सपेंडिचर को तुरंत कम कर दे और टैक्स को बढ़ा ले. और आपको याद होगा जब गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया था, एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा था, तो ये पैसा कहां से लाएगा गवर्नमेंट? तो ये इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी. तो ये फिस्कल डेफिसिट होगा, इसी को फिस्कल डेफिसिट, आप ये लोग इकोनॉमी में पढ़ोगे, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं. तो जब फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है, टैक्स तो कम कर लिया है, तो अब जब मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने लगेगा तो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा लेगा और एक्सपेंडिचर कम कर देगा. तो उसी समय जो पीछे का जो डेफिसिट है उसको गवर्नमेंट फुलफिल कर लेगा, तो डेफिसिट फुलफिल हो जाएगा और इस तरह से इकोनॉमी इसी बैलेंस पर काम करेगी. सो जॉन मेनार्ड केन्स बिकेम द फादर ऑफ फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी केन्स के साथ ही शुरू हुई है. और दो इकोनॉमी होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमी. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है और ये बना मैक्रो इकोनॉमी.
जो मैक्रो इकोनॉमी आप सोचते हो, इसके फादर भी केन्स ही हैं। तो केन्स ने इस तरह से इकोनॉमी को बचाने का थियरी दिया। आर यू क्लियर? मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स, आर दे क्लियर और एनी डिफिकल्टी? Yes. Okay, clear? Right. So once you are just observing here the Keynesian economics and आयुष पूछ रहे हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट, जर्मन लोन वाज वेव्ड ऑफ। हाँ, जर्मन लोन वाज वेव्ड ऑफ सो दैट कि जर्मन इकोनॉमी हैड टू प्रोग्रेस, जर्मन इकोनॉमी हैड टू बी बूस्टेड अप, क्योंकि उनका मानना था कि जर्मन इकोनॉमी यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो वो जो स्लो डाउन हुई तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी, आयुष, पूरे यूरोप की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। तो उसका कहना था कि अगर जर्मन इकोनॉमी एक बार पिकअप जब पकड़ लेगा, जब लोन का बर्डन कम हो जाएगा, तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी को पिकअप पकड़ेगा, जो इकोनॉमी तो इंटरडिपेंडेंट है ना, तो इसीलिए। पवित्रा पूछ रहे हैं व्हाई वाज एट फर्स्ट कंज्यूमर सेविंग मनी? हाँ, व्हाई वाज एट फर्स्ट कंज्यूमर सेविंग मनी? consumer saving money, Pavitra, I am giving, you will have the money in daily budget. What are you doing? Even you can say, I don't know, Pavitra, whether you are living in hostel, outside house, you are living in home, I don't know, but suppose you are living outside and even your parents are sending money monthly, even there you are having the tendency to save at least some 100 money with you. इट इज ए कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी। हर आदमी अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचाने की कोशिश करता है, ये कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, हम हो, तुम हो, सभी लोग। अब माय स्टूडेंट्स, दैट वाज द, अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इंट्रोड्यूस एन इकोनॉमिक पैकेज इन द फॉर्म ऑफ न्यू डील। अब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ही वाज इन 1932, यू नो, ही बिकेम द president of USA. Actually, Franklin D. Roosevelt became he was having the 4 stints as the president of USA. 4. He was elected 4 times. Actually, today, after that, you can say that there was certain barrier. Certain barrier means that now after constitutional amendment, no one can, no president could have the more than 2 tenures in USA today. But at that time, there was no such a barrier, so he could become the president of USA 4 times. For the first time, he was elected in 1932. So he started 100 days reforms in USA, and he declared that in order to save world and USA from world economic depression, we declared a New Deal policy. तो देखो, डी रूजवेल्ट, तुम लोग मेंटली अलर्ट रहना, डी रूजवेल्ट को और चर्चिल, जो मिस्टर चर्चिल, उसको मैं आगे चर्चा करूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इन दोनों को हीरो माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ने दुनिया को बचाया है। अब जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, तो उसने जो न्यू डील को डिक्लेयर किया रूजवेल्ट ने, तो उसने ये नहीं कहा कि वी हैव टू सेव अमेरिकन इकोनॉमी, उसने कहा कि वी हैव टू सेव इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जब डोनाल्ड ट्रंप या इवन बराक ओबामा ने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका फर्स्ट, तो इस बात को क्रिटिसाइज किया जाता था कि यार तुम्हारा एक पूर्वज था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो न्यू डील का फादर था, और उसने वर्ल्ड को पहले बचाया, क्योंकि जानता था कि वर्ल्ड के इकोनॉमी पर अमेरिकन इकोनॉमी इतना डिपेंडेंट है कि बिना वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाए हुए वी कैन नॉट सेव अमेरिकन इकोनॉमी। एंड you president are having such a parochial view. You are talking in terms of saving American economy first, and you are giving the slogan America first. How far are you justified? तो इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है उसको। खैर, एनीवे, सो ही स्टार्टेड सो मेनी प्रोग्राम्स। मतलब देखो, न्यू डील पॉलिसी का इन सम टोटल व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ न्यू डील? टू क्रिएट परचेजिंग पावर अमंग द पीपल. So he started subsidies, giving subsidies. He started construction work, created public works department, and started, you can say, public works. He even established a Tennessee Valley project. Tennessee Valley project, just like the Damodar Valley project, that is the multi-purpose project in India.
it could provide the 7,000 employment. Likewise, all the slums in America, they were transformed into the modern mohalla because the housing construction. So it provided the employment to the lakhs of the people. Old age pension, etc. So all created purchasing power, and that saved American economy and world economy from world economic depression, because if the American economy had to progress, that will give support to world economy as well. तो उसका देखो, उसका जो न्यू डील का सम टोटल है वो है कि लोगों में परचेजिंग पावर क्रिएट करो. अगर लोगों में परचेजिंग पावर अगर आ जाएगा तो इकोनॉमी बच जाएगी. सो क्रिएट द परचेजिंग पावर अमंग द पीपल. सो दिस वाज द बेसिक मोटो ऑफ दिस पॉलिसी. क्लियर हुआ न्यू डील? प्लीज इन्फॉर्म टू मिस्टर अंकुर, because my students, I prefer to make this class communicative. You people have to respond quickly. Yes. Okay. What policy instruments were deployed to contain the Great Economic Depression UPSC 2013? You know, मतलब यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये 2013 में क्वेश्चन पूछा है. तो माय स्टूडेंट्स हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन. इसको मैं क्या पढ़ के बताऊं, आप लोग इनलाइटेंड एनफ हो कि आपका आंसर मैंने मॉडल दिया है, आप पढ़ोगे वेरी वेरी विल आंसर द क्वेश्चन. Wherever you find difficulty, you can ask me the question. I am here to serve you. Of impact of Great Depression crisis in capitalism, changes in the nature of capitalism, development of capitalism based on Keynesian economics, increasing the role of government in the operation of economic policy by Roosevelt. In order to face the crisis, the power and intervention of the governments increased, and socialism benefited from the crisis in capitalism, especially because only Russia could escape this depression cycle. Hence, socialism progressed all over the world, and fourth, capitalists and landlords were apprehensive about the popularity of socialism, so they encouraged fascism to ultranationalist ideology. देखो, यही मैंने आगे भी दिया है, लेकिन शॉर्ट में हमने इस डायग्राम के फॉर्म में दिया, बहुत क्लियर है. देखो, फर्स्टली आफ्टर व्हाट इज द टेम्परेचर 25. good. Just observe here. अब changes in the nature of capitalism, you know, because earlier the capitalism was based on the classical economics. Now it was based on Keynesian economics. Earlier there was the, you can say, supply side economy. Now it was a demand side economy. That was the supply led economy. That is the demand led economy. Earlier there was the microeconomy was famous, now the macroeconomy. So you can say that this was the Keynesian economics, so there was the change in the nature of economy now. So this was the first one impact. The second one impact was कि अब now एक बात बताइए, Keynesian economics में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, you have to be mentally alert. जैसे आपने क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का क्या था कि द मार्केट, द इकोनॉमी हैड टू बी गाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, एंड द मार्केट फोर्सेस आर बेस्ड ऑन इट्स इंटरनल लॉज, एंड द लॉज इज द लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Keynes has advocated कि no, the government had to make an active intervention into the economy. The government had to make an active intervention into the economy, and the government had to, in one sense, do the demand management. गवर्नमेंट को इस पर कॉकपिट पर बैठ के डिमांड को मैनेज करना है. किससे? तो टैक्सेशन सिस्टम्स के थ्रू और एक्सपेंडिचर के थ्रू. ये कहला है उसका. तो दो टर्म आता है स्टेट के लिए. एक टर्म आता है मिनिमल स्टेट, एक टर्म आता है मिनिमल स्टेट, और एक दूसरा टर्म आता है मैक्सिमल स्टेट. मैक्सिमल स्टेट, मिनिमल स्टेट एंड मैक्सिमल स्टेट. तो मैं मिनिमल स्टेट को 0.1 करता हूं और मैक्सिमल स्टेट को 0.2 करता हूं. आई एम आस्किंग द क्वेश्चन कि केनेसियन इकोनॉमिक्स आइदर क्रिएटेड वन और टू, वन मिनिमल स्टेट एंड टू मैक्सिमल स्टेट, कि केनेसियन इकोनॉमी
created which type of state, the minimal state or maximal state? Two, maximal state. You people are wise enough to understand the things. No problem at all. Everybody is okay? No one तो किसी ने नहीं लिखा ना? अभी तक तो नहीं। अच्छा, very good. My students are wise enough to understand the complication, you know. So you find here the term the minimal state and the maximal state, and here you know कि I have talked about the minimal state, maximal state. अब एक बात बताओ, एक स्टेट अगर मैक्सिमल हुआ तो गवर्नमेंट का पावर पहले से बढ़ गया, मैक्सिमल स्टेट हो गया, तो स्टेट का नेचर भी चेंज हो गया. इट वॉज गोइंग टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, द नेचर ऑफ स्टेट एज वेल, इवन द पॉलिटी चेंज्ड. यही मिडिल क्लास है जो हमेशा कहता था मिनिमल स्टेट, बट केन्स क्रिएटेड द मैक्सिमल स्टेट. वो ऐसा स्टेट जो हेवी टैक्स लगाता है, इकोनॉमी में इंटरवेन करता है. अब इसका मतलब ये नहीं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है ये. It was not, government is not running economy as the socialist government is doing. Rather, you can say the capitalist government based on the Keynesian economics had to do the demand management only, not the run economy. The economy had to be run by the private sector as earlier. अब एक और दिलचस्प बात बताता हूं. देखो, आगे तुमको मैं बताऊंगा कि सोशलिस्ट मॉडल डिसइंटीग्रेट किया और कैपिटलिज्म से सोशलिस्ट मॉडल हारा. तो ये किस कैपिटलिज्म से हारा? एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म से या जेबीसी के कैपिटलिज्म से? नहीं, केनियसियन कैपिटलिज्म से. एंड केन्स एंड रूजवेल्ट बोरोड अ लॉट ऑफ फीचर्स फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी इटसेल्फ. मैं आपको बता दूं कि केन्स और रूजवेल्ट ने सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी से बहुत कुछ चुराकर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नेचर को चेंज कर दिया, उसको पावरफुल बना दिया. अब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं. अंकुर, बी मेंटली अलर्ट, यू विल रिप्लाई टू मिस्टर अंकुर. अब कार्ल मार्क्स, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, डोंट टेक इट सीरियसली. इट जस्ट इमेजिन कि इफ कार्ल मार्क्स कुड हैव गिवन अ पिस्टल विथ सिंपली अ वन कार्ट्रिज, not more than one, and both of them, on the one side there could have been Adam Smith, on another side there could have been the John Maynard Keynes, and Karl Marx was permitted to fire on one of them. To whom Karl Marx preferred, either John Maynard Keynes or Adam Smith. Adam Smith point 1, John Maynard Keynes point 2. Karl Marx किसे सूट करता? एडम स्मिथ को सूट करता या जॉन मेनार्ड केन्स को? एडम स्मिथ पॉइंट 1, जॉन मेनार्ड केन्स पॉइंट 2. बी फास्ट. मैक्सिमम तो 1 आ रहा है. मैक्सिमम 1. माय स्टूडेंट्स, यू आर ब्रिलियंट एनफ, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आप यू हैव फॉलन इनटू ए पिट. केन्स को गोली मारता, ही कुड हैव शॉट केन्स, नॉट एडम स्मिथ. केन्स से उसको खतरा था. वो तो एडम स्मिथ को चाहता था कि ठीक है, क्योंकि उसका पूरा तो थियरी एडम स्मिथ के अगेंस्ट में ही था. वो ऐसा कैपिटलिस्ट चाहता था. देखो, मार्क्स का फॉर्मूला क्या था कि कैपिटलिस्ट विल एक्सप्लॉइट द वर्कर्स. कैपिटलिस्ट एंड यू कैन से कैपिटलिस्ट क्लास विल एक्सप्लॉइट द वर्कर्स. तो वर्कर्स, इट विल क्रिएट अ क्लास कॉन्शियसनेस अमंग वर्कर्स, एंड वर्कर्स हैड टू गो फॉर द रेवोल्यूशन. सो इट वाज हिज फॉर्मूला. अब सपोज इफ देयर कुड हैव बीन द कैपिटलिस्ट बेस्ड ऑन द केनेशियन इकोनॉमिक्स, so this capitalist had to spend the money in the market, and in spending the money, the capitalist class could have spent a lot on workers for the welfare works. एक कहावत है कि गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. तो अब एक जो केन्स की इकोनॉमिक्स है उसमें है आम, क्याम और गुठलियों के दाम.
आप मनी स्पेंड कर रहे हो, वो वर्कर्स तक पहुंच रहा है, उसका भला भी हो रहा है, उसमें परचेजिंग पावर भी आ रहा है और वो मार्केट से गुड्स को परचेज कर रहा है। तो अब जो रशियन कम्युनिज्म है उसके अगेंस्ट में तो केन्सियन इकोनॉमिक्स है, तो रशियन कम्युनिज्म को भी तो काउंटर कर रहा था। वो कर रहा था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तुमको बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और केनेसियन इकोनॉमिक्स में वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन है ही नहीं, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, उनके लिए वेलफेयर वर्क्स है और वो स्पेंड करने से स्टेट को फायदा है क्योंकि उसमें परचेजिंग पावर है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम हुए ना। तो मार्क्स को सबसे अधिक झुंझलाहट, सबसे अधिक इरिटेशन केन्स पर होगा कि दिस मैन ने हमारे पूरे प्लान को चौपट कर दिया। आर यू क्लियर? प्लीज गिव अ हिंट टू मिस्टर अंकुर। आर यू क्लियर? ओके हाँ बोलो। Pavitra Giri, but Keynesian method damage capitalist. Then why Marx would have problem with Keynes? नहीं, नॉट डैमेज कैपिटलिस्ट, सेव्ड कैपिटलिज्म। पवित्रा, नो करेक्ट लॉजिक। केनेसियन मॉडल सेव्ड कैपिटलिस्ट, नॉट डैमेज कैपिटलिस्ट। वही तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन से बचाया है। हाँ, राहुल का कह रहे हैं कि but Keynes policy did a lot of work in worker class by giving subsidy, PWD employing. यस हाँ, तो मतलब ठीक तो कर रहा है राहुल, तो हमारी बात से एग्री है। प्रॉब्लम क्या है राहुल को? मिस्टर अंकुर, इतना ही तो। हाँ, तो उसने तो हमारे ही व्यू को के निकट है, तो उसमें तो उसका क्वेश्चन है ही नहीं। एंड इंपैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, अब देखो उसका इंपैक्ट तो होना ही है। इम्पैक्ट, इन ऑर्डर टू फेस द ग्रेट डिप्रेशन द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म इटसेल्फ चेंज्ड। कैपिटलिज्म एडॉप्टेड सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, जो मैंने आपको समझाया है। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक प्लानिंग, द आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन। जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग भी कैपिटलिज्म ने अडॉप्ट कर लिया, तो सोशलिज्म के तो बहुत सारे फीचर्स अपना लिए। द आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन फॉर दिस चेंज came from an economist, John Maynard Keynes, who was in favor of the government intervention in order to maintain the demand in the economy. Thus, the nature of capitalism changed. Okay, there was a deep impact on the economic downfall on the political sphere during 1920s. Many parliamentarian democracies were established in Europe, but in the 1930s, democracy could sustain only in Britain, France, Scandinavian countries, Czechoslovakia, and some other countries. Political upheavals was observed even in the countries where a democratic economy was prevalent. In order to face this economic recession, the power and intervention of the European governments increased. अब जब इस तरह की क्राइसिस का मूवमेंट आता है तो जो सेंट्रलिस्ट गवर्नमेंट वो नहीं टिक पाती है, तो डेमोक्रेसी धराशायी होने लगी। और जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स उसके पावर बढ़ गए, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन को टैकल करना था। It highlighted the weakness of the capitalist economy. Only Russia was able to escape from this depression cycle. अब क्योंकि because the Russian economy was isolated economy, so it could be saved. And Russian economy was based on the socialist model that was based on the economic planning. Demand and supply both were organized by the state itself, so there was no question of the depression for Russian economy. You know, अब डिमांड भी वहां मैनेज कर रहा है स्टेट और सप्लाई भी स्टेट मैनेज कर रहा है, तो डिप्रेशन क्यों होगा? सोचिए। The progress of socialism frightened the capitalists and landlords. Then, in order to contain the spread of socialism, Western countries adopted the policy of appeasement and fascist powers were promoted. तो अब क्या हुआ कि जो the progress of जो socialism है वो frightened the capitalists and the landlords. Then, in order to contain the spread of socialism, Western countries adopted the policy of appeasement and fascist powers were promoted. अब एक बात और भी हुई, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो रशियन इकोनॉमी सेव्ड हो गई। सो एज द रशियन इकोनॉमी वाज सेव्ड, सो इट इनकरेज द सोशलिस्ट आइडियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि दुनिया में सोशलिस्ट आइडियाज को क्यों प्रमोशन मिला? क्योंकि अब तो
उनको लग रहा था कि वे सोशलिस्ट मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल है, तो ऑल ओवर दुनिया में जब सोशलिज्म का प्रोग्रेस होने लगा, तो अगला टॉपिक में मैं बताऊंगा कि सोशलिज्म को काउंटर करने के लिए एक बड़ा ही एग्रेसिव नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ने जन्म ले लिया, जिसको फासिज्म कहोगे। सो इन ऑर्डर टू काउंटर सोशलिज्म, अ न्यू एग्रेसिव नेशनलिज्म अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फासिज्म। अब क्वेश्चन, द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन चेंज द इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप, बोथ एनालाइज इट। You will be clear, no problem at all. You will go through it. अब क्राइसिस इन कैपिटलिज्म, जब क्राइसिस इन कैपिटलिज्म हुआ तो दो प्रकार का देखो रिस्पॉन्स हुआ। एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट द क्राइसिस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स डेवलपमेंट ऑफ केनेसियन इकोनॉमिक्स का है और न्यू डील पॉलिसी का है। और डिस्ट्रक्टिव जो रिस्पॉन्स अगेंस्ट क्राइसिस है वो है फासिज्म का, जो मैं अगला टॉपिक आपका फासिज्म पढ़ाऊंगा। वो इसका, जैसे इसका कंस्ट्रक्टिव जो रिएक्शन होगा वो होगा केनेसियन इकोनॉमिक्स का और रूजवेल्ट का, और जो डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स होगा वो होगा फासिज्म का। वो मैं अगला टॉपिक में बताऊंगा। रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट सेकंड क्राइसिस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेस, वही बातें हैं जो इसमें दी हुई है। टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, जो मैं आपको समझाया हूं, इस सबको पढ़ लेना एक बार। न्यू डील पॉलिसी ऑफ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ये हमने ऑलरेडी डील किया हुआ है। अब देखिए इंपैक्ट ऑफ केनेसियन इकोनॉमिक्स एंड न्यू डील पॉलिसी ऑन ऑफ रूजवेल्ट। तो जो कैपिटलिस्ट स्ट्रेंथेन इटसेल्फ बाय एडॉप्टिंग सम फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, जो कैपिटलिस्ट मॉडल है उसमें कुछ सोशलिस्ट फीचर्स आ गया, जो मैंने बताया, मैं आपको समझा चुका हूं, इसको देख लेना, तो और पावरफुल हो गया। और ये जो सोशलिस्ट मॉडल है स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है सोशलिस्ट मॉडल का। तो मैं एक बात बताऊं कि देखिए इसको थोड़ा समझाता हूं। देखिए पवित्रा अभी भी कह रही है कि केनेशियन मॉडल से वर्कर्स को फायदा हुई, उनको वेजेस मिले, फिर भी मार्क्स उनके अगेंस्ट क्यों? नहीं, वर्कर्स को फायदा मिला तो वर्कर्स रेवोल्यूशन से हट गए ना। पवित्रा, प्लीज अंडरस्टैंड मी। जैसे देखो, एक्चुअली ये बात तुमने सही कहा कि वर्कर्स को फायदा हुआ। जैसे देखो, दो तरह के कैपिटलिस्ट होते हैं। एक तरह के कैपिटलिस्ट होते हैं कि लोगों का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। दूसरे तरह का कैपिटलिस्ट होते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं और आक्रोश भी अपने अगेंस्ट में नहीं पैदा होने देते। क्यों? प्याव लगवा देते हैं, ब्लैंकेट बंटवा देते हैं, गरीबों को बीच बीच में लंगर चलवा देते हैं, पब्लिक फिस्ट, और वो उनमें कभी आक्रोश नहीं होने देते हैं। गरीब उनको माई बाप समझते रहते हैं और वो धीरे धीरे गरीबों को चूसते जाते हैं। को कार्ल मार्क्स को दूसरे कैपिटलिस्ट से खतरा है और केन्स वो दूसरा वाला है कि गरीबों की मदद नहीं कर रहा है, वो तो मदद अमीरों की कर रहा है। वो जान रहा है कि गरीबों को थोड़ा नहीं दूंगा तो अमीर नहीं जी पाएंगे। और कार्ल मार्क्स बीच का समाधान नहीं चाहता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक ही इसका सोल्यूशन है, कैपिटलिस्ट मॉडल को ब्रेक डाउन करने दो। लेकिन जो केनेसियन इकोनॉमिक्स है वो ब्रेक डाउन होने से बचा लिया, नहीं तो ब्रेक डाउन कर जाता कैपिटलिज्म। तो कार्ल मार्क्स को तो पवित्रा केन्स से परेशानी होगी ना। अब आर यू क्लियर? मुझे लगता है अब आप क्लियर हो गए होंगे। तो देखो, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं। देखो, दैट इज कैपिटलिस्ट मॉडल। and that is socialist model. अब दोनों की दोनों का एक एक बेनिफिट है, एक एक कमजोरी है। बेनिफिट इसका क्या है? इसमें इंसेंटिव है। इंसेंटिव का मतलब है कि काम करने का आपको प्रेरणा मिलेगी। जैसे आप गांव का एक बढ़ई है, एक कारपेंटर है, आई एम गिविंग द एग्जांपल। इफ यू विल अपॉइंट हिम, यू हैव टू मेक द चेयर्स पर डे, तो इन द थ्रू आउट द डे एंड नाइट ही विल मेक एंड ही विल, you can say, manufacture a single chair, and you will give him कि for every chair you will award it 1000 rupees. So in the whole day and night he will create 4 chairs, even up to midnight he will work. तो कैपिटलिज्म में क्या होता है कि डायरेक्ट जो प्रॉफिट का इंसेंटिव होता है, तो वह कैपिटलिज्म का ताकत है। और कमजोरी क्या है? तो कमजोरी है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मतलब इकोनॉमी का जो कुछ ही सेक्टर है वही डेवलप कर पाएगा, बाकी सेक्टर नेग्लेक्टेड हो जाएगा। लोगों के साथ मतलब
इनइक्वालिटी होगी, पुअर और भी पुअर हो जाएंगे, रिच और भी रिच हो जाएंगे, क्योंकि फ्री इकोनॉमी है। सोशलिज्म का एक प्लस पॉइंट, अच्छा ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, इनइक्वालिटी एंड द पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि अब जो सेक्टर से मुनाफा होगा उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, जिस सेक्टर में मुनाफा नहीं होगा क्योंकि तो फ्री है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक बेनिफिट क्या है कि सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा और देयर वुड बी, you can say there would be the human capital development because education for all, health for all, and the state would invest in all the sectors of the economy. So during the early phase the economy had to grow fastly. अब जैसे रशिया में जब डेवलपमेंट शुरू हुआ सोशलिस्ट मॉडल के तहत, तो जानते हो रशियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 40% पर एनम था, 40% पर एनम ग्रोथ रेट पहुंच गया, क्योंकि अनरियलाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, वहां पर स्टेट इन्वेस्ट कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट के लिए स्टेट काम कर रहा है, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर सबको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका इकोनॉमी में बहुत फायदा होता है। और उसका जो नेगेटिव पक्ष है वह है कि दो नेगेटिव पक्ष है। एक कि स्टेट इकोनॉमी रन कर रही है, तो स्टेट इकोनॉमी रन करेगी तो किसके सहारे करेगी, तो ब्यूरोक्रेसी, और जहां ब्यूरोक्रेसी आती है वहां पर दो बुराइयां आ जाती है। एक है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या होती है कि किसी काम बहुत आपका स्लो डाउन हो जाएगा और उसमें करप्शन आ जाता है कि जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे तो काम आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि उसमें एक इंसेंटिव होता नहीं है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेसिकली एक बर्डन बन जाती है। तो रेड टेपिज्म का मतलब है लाल फीताशाही, मतलब उसमें क्या है कि आप प्रत्येक टेबल पर आपको रकम देनी पड़ेगी तब आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। और दूसरा वीकनेस होता है कि उसमें प्रॉफिट का इंसेंटिव नहीं होने से, मतलब जो वर्क करने का जो एक एक्चुअल इंसेंटिव है वो डिक्लाइन कर जाता है। तो लॉन्ग टर्म में जाकर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो पिछड़ गई। कैपिटलिज्म ने थोड़ा सा सोशलिज्म से जो उधार ले लिया केनेसियन इकोनॉमिक्स के रूप में, इसलिए वो बच गया। सोशलिज्म भी अगर कैपिटलिज्म से थोड़ा उधार ले लिया होता तो शायद वो भी बच जाता, आगे चलकर सोशलिस्ट इकोनॉमी डिसइंटीग्रेट कर गई। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इंपैक्ट ऑफ केनेसियन इकोनॉमिक्स एंड रूजवेल्ट, कैपिटलिस्ट मॉडल, पॉजिटिव सोशलिस्ट मॉडल, मतलब उन दोनों का जो पॉजिटिव नेगेटिव है, उस नेगेटिव एस्पेक्ट जो मैंने आपको समझाया वही क्लियर किया। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में देख लेना, केनेसियन इकोनॉमिक्स एंड न्यू वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये तो मैं ऊपर ही समझा चुका हूं। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में वही रिपिटेशन है और यही, और न्यू डील पॉलिसी ऑफ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ये भी समझा चुका हूं, रिपिटेशन है ये। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नेंस को कैसे बदलेगा, तो मैक्सिमल स्टेट, पहले मिनिमल स्टेट था, मैक्सिमल स्टेट बन गया। देखो we have discussed above that a new economic model had been developed to overcome the crisis in capitalist economy, and in this sequence of events Keynesian economics and New Deal policy of Franklin Roosevelt came into existence. Although it was an economic outcome, its impact was also underlined in other areas also, like constitution and governance, classical economics and so on. आयुष पूछ रहे हैं, apart from state interference in markets, what are other points for capitalism influenced by socialism? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं। Apart from state interference in markets, what are other points for capitalism influenced by socialism? That's the single point. Who has asked this question? Ayush. Actually, the government intervention in the economy and partially the economic planning. Economic planning was, I have discussed with you earlier, that was given birth in Russia and Stalin introduced it. Ayush, you know. But this capitalist economy also assimilated the model of economic planning. So it is on this basis you can say कि capitalist economy borrowed something from socialist one. तो आयुष जो तुमने समझा है सही समझा है, मार्केट इंटरवेंशन ही सोशलिज्म से लिया है। प्रिंस पूछ रहे हैं कि
What were the measures accepted from socialism to capitalism? Yeah, 1 minute. What were measures accepted from socialism to capitalism? The same thing. The Ayush and who? Prince. The same question Ayush has asked me. Matlab, the intervention into the market and the government is working for demand control management, managing expenditure, managing the taxes system. So government intervention in economy was itself inspired by the socialist model. So it's a question, what would have been the view of Marx on today's workers' condition? Yeah. Marx could have been the very sorry for the state of affair, and Marx could have burst into tears after observing the condition of workers even today. क्योंकि पवित्रा आप अभी रास्ते में हो. अभी आपको मैंने केनेसियन इकोनॉमिक्स बताया है. आपका सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको केनेसियन इकोनॉमिक्स का डिक्लाइन बताऊंगा 1970s में, जब ऑयल क्राइसिस आई तो, और फिर कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया. तो तुम अब तो आज तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एरा आ गया ना. केनेसियन इकोनॉमिक्स तो हाशिए पर चला गया. तो फिर एक बार लौट के तो वही मार्केट इकोनॉमी की तरफ लौट गए ना आप, जिसको न्यू लिबरल इकोनॉमी कहते हो. जो मैं आपको बता रहा हूं, एडम स्मिथ से लेके जीवी से तक का क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, उसको लिबरल इकोनॉमी कहते. इसको फिर न्यू लिबरल इकोनॉमी कहते, क्योंकि वही चीज लौट कर आई आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. आई विल मेक यू क्लियर. जस्ट वन मिनट. तो इससे क्या हुआ? ड्यू टू दिस फैक्टर, यू नो, कि द न्यू लिबरल इकोनॉमी once again opened the market. So there was the second one recession or the depression, that was recession, and that was 2008-9. तो फिर लौट के आप वापस आ गए. फिर वर्कर्स की दशा फिर खराब तो होगी न्यू लिबरल इकोनॉमी में. हाँ, यस. दीपक पूछ रहे हैं सर कि कोल्ड वॉर वाज आल्सो फॉट ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, बट व्हाई इट वाज नॉट नेम्ड एज वर्ल्ड वॉर 3? Because it was not a hot war. It was a cold war. Rather, you can say hot peace. Because there was a situation of detente. I will reply this question whenever I will teach you the Cold War. So please have the patience till the Cold War. Dipanshu question, the difference between capitalist model and socialist model once again in short. In capitalist model, you can say there is the scope for Dipanshu, there is the scope for the private incentive, the individual incentive, the profit motive. In socialism, you will not find profit motive. But in capitalist economy, the negative side is the intense economic inequality, and the few sectors of, or you can say limited sectors of economy was drawing the investment. There was not the overall development of economy, and there was the sharp economic inequality. In socialist economy, the plus point was that the investment by the state in almost all the spheres, and apart from that, the better facility of the people, the health, the free health education, etc., etc. But the negative side is that as the economy was being run by the bureaucracy, so the corruption was crept into the economy. And apart from that, Dipanshu, in fact, in socialist economy, there was the lack of incentive for work. So in long term, it was going to be stagnated. अभिषेक पूछे, is world war the only reason for great economic depression? No. मैंने 5 to 6 रीजंस बताए हैं, और फिर अभिषेक फिर तुम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो. इज इट जस्टिफाइड? मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के कॉजेज नहीं बताए हैं, तो व्हाई दिस क्वेश्चन नाउ? शिवम पूछे, if China is also communist, then why hasn't China collapsed yet? Let China come. शिवम, लेट चाइना कम. आगे का क्वेश्चन मत पूछो शिवम. आगे मैं आप एक चुस्की पीने वाला हो, पीना चाहते हो, मैं आपको आगे पूरा ग्लास पिलाने वाला हूं. सो व्हाई चाइना वाज सेव्ड, आई विल इवन टॉक अबाउट दिस, बट लेट द टॉपिक कम फर्स्ट. वैष्णवी पूछे, सर, इज द न्यू डील पॉलिसी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय केनेशियन इकोनॉमिक्स मॉडल? Yes, not directly but indirectly. Vaishnavi, not directly but indirectly it was influenced. Ayush पूछ रहे, what are capitalist features that Lenin followed in new economic policy? 90% economy was placed under the private capital, you know. Economy was opened, and you can say capitalists were allowed to, who has asked this question? Ayush. The capitalists were allowed there to invest and take the profit,
and even the peasants had to sell their products in the market, So 90% economy was placed under Ayush, 90% economy was placed under the private sector. So that is the feature of the capitalist model. Ankit पूछ रहे हैं why revival of German economy under Hitler was surprising. Who? Ankit, because Hitler was not an economist. He just tried to appease his, you can say, youths and tried to solve the problem of unemployment in Germany. But it was in this course, you can say, unconsciously solved the problem of economic depression as well. So he was a propagandist, he was not an economist, but he saved Germany from the depressionary pressure. Simant पूछ रहे हैं was there any link between hanging of Bhagat Singh and Great Economic Depression? Simant, this is a very far-fetched question, but I can give you the credit to be so, you can say, you are so you are having an inquisitive mind, so it is really praiseworthy, but I don't think there is any direct relationship between the World Economic Depression and the death sentence of Bhagat Singh. Okay, sir. Homework. Yes. Homework, my students. Question. World Economic Depression depression 1929-30 transformed the capitalist economy and capitalist state both comment. Transformed capitalist economy and capitalist state both comment. 150 words. My students, you people have to try this question. Will you try this question? My students, be fast. Yes. Okay? And you people will easily answer this question. I am confident. And tomorrow at 12 o'clock, keep in your mind, at 12 o'clock, you will download a matter on fascism. Get it downloaded as quickly as possible. And you have to go through it, some pages, before attending the class tomorrow. Because tomorrow I have to deal with the topic fascism and Nazism. And the next one class, that would be the Second World War. So up to the next class, we have to reach up to the Second World War. So I have to stop here, my students. And then I have to move further tomorrow. Okay, my student. Yes, good.